Here's a top focus. Just 3 days back, viewers, Mafia Atiq Ahmed and his brother Ashraf were killed in Prayagraj in cold blood. 3 shooters posing as media personnel came close, shot the 2 brothers dead. Without a doubt, the killing in police custody brought to fore a series of lapses on part of the state police, but unfortunately, after the killing of the Don, whose reign of terror spanned decades, a string of apologists sought to whitewash his crimes and even used a title such as G to address him. Now, viewers, more evidence is emerging which proves that Atiq was no Robin Hood. He was sworn to a life of crime. Times Now has accessed WhatsApp chats of gangster Atiq Ahmed, which clearly reveal how Atiq ran his crime nexus even from inside the jail. These WhatsApp messages sent by Atiq to a builder, Muhammad Muslim in Lucknow, are from 7th January this year. Yes, 2023. And in these chats, Atiq Ahmed can be seen threatening the builder and his family. Atiq Ahmed had asked the builder to pay money for election funding for his son Asad and said that it was his last warning to him as his fortune was going to change very quickly. It's important that in this chat Atiq says, "Hisab hona hai aur bahut jald hisab shuru kar dunga." That's not all. Viewers, Times Now has also accessed Atiq terror tapes, audio tapes of Atiq in which he can be allegedly heard threatening a Prayagraj-based property dealer. This was a phone conversation recorded a few years ago. It's believed to be from 2019, in which Atiq threatened Zaid with dire consequences, for he had solemnized a land deal against Atiq's wishes. In this audio, Atiq mentions the Deoria jail, which point to the fact that even then his crime racket continued from inside the jail premises. Atiq was heard saying that even as Zaid had apologized for annoying him, he will still thrash the dealer at least once so that he realizes his mistake. Here's the tape. Listen to this. हेलो। हाँ जैद। हाँ भाई। तुमको याद है कि तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ। तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो जी। और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर से लोग बैठे थे। हाँ 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 हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हम खुद समझ रहे थे। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी। तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाए गए हम। मतलब तुम नहीं सुन लो। हाँ हाँ। हम फिर कह रहे हैं हाँ हाँ कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया और तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बंगले के बिना पैसे के। हाँ 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 हाँ। लेकिन तुम आबिद के यहाँ शादी करने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था, समझे कि नहीं? न तुम फोन उठा रहे हो, न तुम कायदे की बात कर रहे हो। और 200 नंबर हमने मना करवाया कि तुम मत लिखवाना, लेकिन तुमने लिखवा लिया। तो ये क्या हरकत थी? मतलब तुम आबिदों को बर्बाद करना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं भाई। 200 नंबर अगर लिखाई गई तो साबित, फरहान, सब लोग कहे कि सबको जानकारी में जमीन रजिस्ट्री हुई थी। कोई हमने अपने से नहीं लिखाई थी जमीन। नहीं नहीं, ये बताओ, हम आबिद फरहान से तो नहीं कहा रहा, तुमसे कहा रहा था कि मत लिखाना। नहीं, आपने तो हमसे नहीं कहा था भाई। अरे हमने नीलू से 4 मरतबा 10 मरतबा कहलाया तुमको। नीलू ने जब कहा था, जब रजिस्ट्री हो गई थी तब उसके बाद कहा था रजिस्ट्री। गलत बात कह रहे हो, गलत बात कह रहे हो। तुमने जिस दिन रजिस्ट्री कराया वो भी हमको मालूम है, जब नीलू सबने कहलाया वो भी हमको मालूम है। अगर हम तुमसे कह रहे हैं इतना काम कर रहे हो चारों तरफ, अगर हम तुमसे एक जमीन कह रहे हैं कि 18 नंबर मत कराना, तो चाहे फरहान कहा है चाहे आबिद कहा है, तुमने क्यों करा लिया? बता देते हो कि मना कर रहे हैं हमको। नहीं तो प्रधान कहें कि हम भाई से बात कर ले, भाई के सब में शेयर रह गया और कोई दिक्कत। प्रधान कहें ऐसा है कि भाई हम तुमका चाहे 1 लपड़ मारी, खाली 1 हाथ मारी, मगर भाई तुमका 1 हाथ मारा, समझो ना? ऐसे कि तुम्हारा भूत नहीं उतर रहा है कि प्रधान कहें, समझो? अरे प्रधान से तो अब रिश्ता होता है हमसे। अबे हमसे तो प्रधान के पहले रिश्ता रहा। सही है, पहले से प्रधान से पहले रहा। सही है, तो हम प्रधान के पहले तो का चाहत रहे, समझो ना? सही। पर अब तुम प्रधान के दिमाग होगा तो प्रधान जो कहेंगे, प्रधान का ठीक ऊपर गोली चला दे, तुम गोली चला दे। वो गोली तो नहीं चला सकते भाई। एक बात हम कह रहे हैं। एक बात हम कह रहे हैं जी कि मतलब रिश्ता होएगा तो मतलब हम छूट गए। नहीं, आप नहीं छूट।
It does not end here, viewers. In another audio tape that is now with Times Now, Atiq is heard threatening a property dealer named Ashraf. Atiq hurls abuses on the man and threatens to beat him up. अशरफ अतीक बोल रहे हैं। जी कहाँ हो तुम? घर पे है। अच्छा ये खुद्दूस का जो तुम परेशान किए रहा तो जी अशरफ के साले बने रहा तो विधायक जी के साले बन गए हो। अब तुम खुद्दूस में चलना का सही आने हरवाना बहुत विवाद में हो जाओ बेइज्जत। ना फूल को मुँह देखा ना कोनो को मुँह देखा। अरे साहब भाई कोई बात ही नहीं है हुआ कि आप झूठ मूठ के बता रहे हैं। कहा बात है हमारे सामने बात करके बताओ कहा हमने उनको परेशान कर रहा हूँ। सामने तुमको चौधरी है तुम्हें सामने बात तो हो जाओ होश में। तुम वहाँ शिकायत हमको इतना ज्यादा मिला थी। हाँ सारा तुम करते रहते हो दोनों हाथ लेटो रहा तो हम खुलवा के मुँह देकर तुम पर शिकायत में बहुत ज्यादा एक हम बताए दे रहे हैं। हम हरवाए की रॉबे दूंगा सब सब लोग आवे ना दे भाई हम जाए तो मजरे में आप मरिए नहीं लोगों ने बुलवा दे भाई लेकिन तुम हो गए आप खुद्दूस के मामले में तुम्हारा कोई नाम सुनी ना सुना तो नहीं आप खुद्दूस के मामले में कोई बर्बादी ना करो। These tapes and the chats come just a day after Samajwadi Party veteran leader Ram Gopal Yadav came out and said that media made him a gangster. Atiq was a clean man. Listen to what Ram Gopal Yadav had said. जितने केस बता रहे हैं अभी एक केस में सजा हुई है। किसी केस में अतीक अहमद दोष सिद्ध नहीं हुआ। किसी केस में एक में भी रोज फर्जी सैकड़ों मुकदमे लोगों के खिलाफ लिखाए जाते कि नहीं लिखाए जाते? लिखाए जा रहे हैं तो संख्या बढ़ जाती। अतीक अहमद 89 में 91 में 93 में इंडिपेंडेंट एमएलए जीते। 96 में या 95 में समाजवादी पार्टी से एमएलए हुए। 14वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी से फूलपुर से एमपी हुए। तो ये तो था नहीं कि साहब गुंडा और बदमाश सब चुनाव जीत जाते हैं। 3 बार तो किसी पार्टी ने निर्दलीय चुनाव जीता था। रिकॉर्ड 3 बार लगातार जीता 89, 91, 93। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath sent a message to the ecosystem, to the patrons of mafia dons, and said that nothing on the ground can change the crackdown against mafia. Yogi Adityanath hardened his stand on the crackdown on criminals and said that in Naya Uttar Pradesh, the mafias are feeling the terror of the state. Here is what he said. उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 2 बातों के लिए यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है। Let's open this up. Rajesh Chaudhary, spokesperson of the Uttar Pradesh BJP, Kapish Srivastava, the national spokesperson of the Samajwadi Party, Kapish Srivastava. आपने राम गोपाल यादव का बयान तो सुना होगा। आज आपने व्हाट्सएप मैसेजेस देखे होंगे और जो अतीक के टेरर टेप्स हैं जिसमें वो धमकी दे रहे हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो मैं मार दूंगा।
देखिए, जो आप कह रहे हैं, जो जिस टेप के बारे में आप कह रहे हैं, वो सत्य है असत्य है, इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी को नहीं। जब ये सत्यापित हो जाएगी माननीय न्यायालय के थ्रू, तो सभी पब्लिक डोमेन में मानेंगे और हम भी मानेंगे। एक बात। दूसरी बात, प्रोफेसर साहब ने जिस बात को कहा, उन्होंने इस बात को कहा कि जब वो 3 बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, तो उस समय तो किसी पार्टी ने उनको चुनाव चिन्ह नहीं दिया था, वो अपने दम पे जीते। किसी व्यक्ति को अगर जनता जिता रही है, तो वो व्यक्ति कैसे दहशतगर्द हो सकता है? एक उनकी अपनी ये बात थी। दूसरी ये कि उसके बाद समाजवादी पार्टी से 3 बार टिकट लेकर विधानसभा गए और 1 बार सांसदी भी उन्होंने लड़ी। उस समय तक भी अतीक अहमद जी समाजवादी पार्टी के जब सदस्य थे, तो अतीक अहमद जी अतीक अहमद जी, ये देश के किसी कानून में नहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को जो मनुष्य हो उसको आप गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं। मानव अधिकार क्या जो कैदी होते हैं उनसे नहीं होते हैं क्या? आपको हमारे संस्कार पे कोई तकलीफ? नहीं, ये अगर संस्कार है और सही गलत का अगर आप फर्क नहीं कर पाए, वो संस्कार नहीं है। जो जिंदा नहीं है, जो एक व्यक्ति नहीं, सुन लीजिए कपिल श्रीवास्तव जी पे मैं आपको बता देता हूं, आपको भी मैं जी कह रहा हूं। कपिल श्रीवास्तव जी, आपने संविधान की बात की। संविधान में तो यह भी लिखा हुआ है कि जो सही गलत है उसका भी लोगों को ज्ञान होना चाहिए। आपको पता था ये क्या कर रहा है, फिर भी आप उसको टिकट दे रहे थे, पेट्रोनेज दे रहे थे, तब आपको संविधान की याद नहीं आई? मैं तो आपको एक बार कह रहा हूं, 106 मुकदमे हैं ब्रिजेश सिंह के ऊपर। ये क्यों देते हैं? क्यों माननीय बनाए हुए हैं? विनीत सिंह को क्यों माननीय बनाए हुए हैं? राजेश चौधरी क्यों माननीय बनाया आपने? और जब समाजवादी पार्टी करती है तो क्या दिक्कत है? मीठा है और बाकी का कड़वा है, ये तो नहीं चलेगा। राजेश चौधरी, ये नहीं चलेगा। बीच में बोलने की, जब इनकी बात पूरी हो जाए तो फिर मैं जवाब हो गई उनकी बात। तो उन्होंने अतीक अहमद जी बोल के अपनी बात पूरी कर लिया। बोलिए अब आप। देखिए, अतीक अहमद को जी लगा करके ये जो बात कर रहे हैं ना कपिल जी, वो एक शब्द दिखा रहा है कि कितनी आत्मीयता माफिया से समाजवादी पार्टी की है, कितनी आत्मीयता हत्यारों से समाजवादी पार्टी की है। अनेक फोटोग्राफ में अभी आपको मेरे मोबाइल में है, मैं दिखा सकता हूं, जब समाजवादी पार्टी के अनेक नेता, राष्ट्रीय नेता, इनके सर्वे सर्वा जो होते थे वो गलवहियां कर रहे हैं। अतीक अहमद को एक दिन में अतीक अहमद नहीं बना, वो हत्यारा एक दिन में इतना बड़ा हत्यारा नहीं बन गया। उसने 40 अब इनको चुप करिए भैया, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, वकील साहब हैं आप, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं बड़ा सम्मान आपका करता हूँ। आप सुनिए, धैर्य पूर्वक सुनिए। सच बड़ा कड़वा होता है, मिर्ची लग रही होगी ना? अरे आपको मिर्ची लगेगी, स्वाभाविक बात है मेरी बात से। आप जैसे लोग और आप जैसी पार्टियां माफिया के टुकड़ों पर पलने का काम करती हैं। आपकी पार्टी उससे चंदा लेती होगी, आपकी पार्टी ने उसे माफिया बनाया। इनकी आवाज बंद करिए भाई। देखो, मैं ये मछली बाजार की तरह तो डिबेट कर नहीं सकता। इनका स्तर इनका है, मेरा वो स्तर नहीं है कि मैं इस तरह से बात कर सकूं इनसे। दाऊद इब्राहिम का शूटर आपका माननीय है जी, कहिएगा। तो चुप करिए भाई, आप अपने समय में बात करिए ना कपिल भाई, मैं नहीं बोलने दूंगा, डिबेट खराब हो जाएगी। आप ये देखिए आप दोनों, कपिल श्रीवास्तव जी 1 मिनट, कपिल श्रीवास्तव जी, राजेश चौधरी जी ऐसे नहीं करते। देखिए, लोग देख रहे हैं, बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसपे हम डिबेट कर रहे हैं। 1 मिनट, एक करके बात कीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी, अब आपने अपनी बात रखी है, उनको जवाब तो देने दीजिए। श्रीवास्तव जी शांत हो जाइए, उनको जवाब देने दीजिए। देखिए, मेरा तो स्तर है नहीं कि मैं मछली बाजार की तरह इनसे तू मैं करूं। ये अपना लेवल इनका होगा, इस तरह से डिबेट करने का मेरा नहीं है। मैं आप इतने बड़े चैनल का समय बर्बाद नहीं करना चाहता कि कोई समझ नहीं पाए। ये भी बोलते जा रहे हैं, हम भी बोलते जा रहे हैं, इनकी आदत खराब है, इनके पास कुछ विषय है नहीं बोलने का। नहीं, वो सब छोड़ दीजिए, अब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हम कोई गलती नहीं है अगर अतीक अहमद को अतीक अहमद जी करके बुलाया और हमने कोई पेट्रोनेज नहीं दिया। ये तो ओसामा बिन लादेन को भी जी कहकर के बुलाते थे। दोनों में क्या अंतर है? इनको केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी, मुसलमान समाज के
लोगों के वोट कैसे हासिल करने, ये अपनी राजनीति करनी, और इसके अलावा बकवास करने के अलावा कोई काम नहीं है इन पे। अरे ये गुंडों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, माफियाओं के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, हत्यारों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, इनके पास दूसरा काम नहीं है। इसीलिए इनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, इसीलिए ये हर चुनाव में नीचे गिरते चले जा रहे हैं। 2024 का परिणाम देखिएगा, इनको हिंदू की चिंता नहीं है, मुसलमान के वोट की चिंता केवल रहती है। और ये समाजवादी पार्टी के सदस्य में हुआ, उसकी हत्या हुई है, तो मुझे तो डाउट है कहीं उसके पीछे ऐसे ही लोगों का हाथ नहीं हो जो उसको सदस्य देते थे। मेरा सके इस बात की जांच होनी चाहिए कि कहीं वही लोग जो उसकी हत्या में शामिल नहीं है, जो ये अवैध रूप से धन कमाता था, ठेकेदारों से, कोटेदारों से, जमीन से और व्यापारियों से धन वसूली करके, ये धन सब इन्हीं लोगों के पास। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ कपिल श्रीवास्तव जी, आपने संस्कार की बात की, एक बात बताइए, एक आदमी, अब आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बोल लिया, लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कपिल श्रीवास्तव जी, सीधा सवाल है, सीधा सवाल का सीधा जवाब कोशिश कीजिएगा कि आप दें। आप संस्कार की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति अगर फोन पे किसी को धमकाता है, मारने की धमकी देता है, तो वो कौन सा संस्कार है कि आप उसको जी बोल के बुलाएं? भाई ब्रिजेश सिंह भी मारने की धमकी देते हैं। अरे अभी अतीक अहमद की बात कीजिए ना। क्यों बात कीजिए, मीठा मीठा डब्बा को कड़वा कड़वा थूथू नहीं चलेगा। उनसे पूछिए कि ब्रिजेश सिंह को क्या कहते हैं, ब्रिजेश सिंह को ब्रिजेश जी कहते हैं कि नहीं कहते, अपना मानवीय बना के रखे कि नहीं रखे? नहीं तो उन्होंने अगर किसी को माननीय बनाया तो आपने भी अतीक अहमद को इसीलिए सम्मान दिया है। सीधी बात कह रहा हूँ, कंपैरेटिव बराबरी की करनी चाहिए। नहीं, कंपैरेटिव बात क्या है, प्रिंसिपल की भी तो बात कीजिए। कंपैरेटिव बात तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एक आदमी इतना खुमार है कि वो लोगों को हत्या की धमकी देता, हमारे पास, अच्छा मैं आपको एक और सुना देता हूं, देखिए टाइम्स नाउ ने, कपिल श्रीवास्तव जी, on Times Now viewers, we've also spoken to people who've been at the receiving end of Atiq Ahmad's wrath. These are witness testimonies, family members of people who were killed by Atiq Ahmad. कपिल श्रीवास्तव मैं वो भी चलाऊंगा। वो बोल रहे हैं कि उनके परिवार वालों के साथ जो जाती हुई, उसके बाद भी अतीक अहमद उनको धमकाता था और कहता था कि अगर तुमने बयान दिया मेरे खिलाफ तो तुम अपने जान से हाथ धो दोगे। उसके बाद भी आप संस्कार की बात करेंगे, आप अभी भी जी हुजूरी कर रहे हैं। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि जो आरोपी था एक मामले में दोषी हुआ, बाकी जितने मामले हैं वो मामलों में दोषी नहीं हो सका। और कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों का संबंध छुपाने के लिए ये शूट आउट स्क्रिप्ट लिख दी गई। यही 2018 में अतीक अहमद हमारे विरुद्ध चुनाव हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने स्पॉन्सर किया था, भारतीय जनता पार्टी उनको जेल में मिठाई खिला रही थी, देवरिया जेल से साबरमती हेलीकॉप्टर में लेके गई थी। अरे अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि आपका हिसाब होगा और जेल से वो ये सब बातें कह रहा है, आप उसको नहीं मान रहे। अब इन लोगों को सुनिए। अच्छा, बीजेपी को 1 मिनट छोड़ दीजिए, देखिए आप लोग आपस में लड़ सकते हैं लेकिन लोगों का समय मत खराब कीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी 1 मिनट, लेट्स हैव सम ऑर्डर हियर प्लीज, 1 मिनट। लेट्स प्ले आउट विटनेस टेस्टिमनीज। दीज आर पीपल हु आर एक्सपोजिंग द रियल फेस ऑफ अतीक अहमद। जब आप लोगों को जबरदस्ती उठाकर ले गए और पेपर्स पर साइन करवाया तो क्या कहा अतीक के लोग? उन्होंने यही कहा कि साइन कर, तो नहीं तो जान से मार देंगे, तुम्हारी बीवी को छत्तीसगढ़ गई है, वहीं से उठवा के मार देंगे। तो इसलिए हमें और मामू उठा के ले गए वो कचहरी और साइन करवा लिया। पहले मोहम्मद आसिफ करके है, वो पहले ब्रोकर बन के आया और पूछा कि आप लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं? तो बोले हाँ हम लोग बेचना तो चाहते हैं। तो बोले कि आप क्या प्राइस सोच रहे हैं? तो हम लोग बोले हम लोग 2 के आसपास सोच रहे हैं। तो फिर बोले कि ठीक है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, वो नहीं आया कुछ दिन तक। फिर मैं चली गई क्या बोलते हैं रायपुर, जहाँ मेरा काम है। और उसके बाद ये कंटिन्यूसली इनके पास में आने लगा, ये आदमी इनके पास में आने लगा और अपने आप को बताने लगा कि मैं एडवोकेट हूँ। फिर अपने आप को गद्दी बताया। उसके बाद बोलता है कि मैं अतीक का आदमी हूँ। और एक दिन आया सुबह और इन लोग को क्या बोलते हैं गन पॉइंट में उठा के लेके गए मेरे मामा ससुर और इनको। अब आप इन लोगों के सामने जाके बोलेंगे अतीक अहमद जी? कपिल श्रीवास्तव सीधा सवाल है। मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ,
कि अगर आपको जी हटवाना था तो ट्रायल पूरा करवाना चाहिए था। समाजवादी अब आप कैसे बिना एक आदमी जिसका ट्रायल होना था हुआ ही नहीं, वो आरोपी तो जरूर है उन मुकदमों में, लेकिन हत्या अभियुक्त या उस मामले में तो ये जो लोग हैं या उमेश पाल की जो के परिवार वाले हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये जो लोग हैं या उमेश पाल का जो परिवार है वो लोग सब झूठ बोल रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, ये संस्कार है, आपने संविधान से बात शुरू की और ये संस्कार दिखा रहे हैं आप। और ये कौन सा समाजवाद है, ये कौन सा ब्रांड ऑफ समाजवाद है ये? नहीं, आप विक्टिम जो है, आप जो पीड़ित है उसकी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो उनको मार रहा है, जो प्रताड़ित कर रहा है, आपके लिए वो जी बन गया। मेरे सामने ना सुन लीजिए, कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं हो सकता, ना मीडिया ट्रायल आप करें। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आप स्पष्ट रूप से कहिए। देखिए, द इकोसिस्टम इज एक्सपोज्ड टुडे। द व्हाट्सएप चैट्स एंड द टेरर टेप्स ऑफ अतीक अहमद हैज नेल्ड द लाइज ऑफ द इकोसिस्टम। We've run out of time, Mr. Chaudhary, Mr. Srivastav. Thank you for joining us on Times Now. Lots more lined up. Please stay with us.